السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی زندگی بالکل خاموش ہو جاتی ہے، نہ کوئی خبر اچھی لگتی ہے، نہ کوئی بات سمجھ آتی ہے۔ دل کہتا ہے سب کچھ رک گیا ہے، محنت بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، لیکن نتیجہ خاموشی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سوچتا ہے شاید میرا رزق بند ہو گیا ہے، شاید میری قسمت ختم ہو گئی ہے، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ کبھی بندے کا رزق بند نہیں کرتا، وہ صرف اس کے راستے بدل دیتا ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دراصل وہ دروازہ تمہارے لیے نہیں ہوتا، وہ تمہیں ایک بڑے بہتر راستے کی طرف موڑنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے سب کچھ اسی لمحے مل جائے، لیکن اللہ کا نظام تاخیر میں چھپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کس وقت کیا چیز کس حال میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے، اللہ تمہیں رزق دینے میں نہیں ٹالتا، وہ تمہیں تیار کرنے میں وقت لگاتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے یہ۔ بندہ کہتا ہے مجھے نہیں ملا، لیکن رب کہتا ہے تم ابھی اس کے قابل نہیں ہوئے۔ اللہ بندے کو محروم نہیں کرتا، بلکہ اسے سمجھدار بناتا ہے۔ وہ اس کے اندر توکل، یقین اور شکر کے بیج بوتا ہے، کیونکہ جب بندہ یقین سیکھ لیتا ہے تبھی رزق اس کے لیے برکت بن جاتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کچھ لوگ کم کھاتے ہیں مگر مطمئن رہتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت کچھ رکھتے ہیں مگر اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ فرق رزق میں نہیں ہوتا، فرق قناعت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہے اس کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ تمہارا ہاتھ روک لیتا ہے کیونکہ تم وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہو جو تمہارے لیے آزمائش بن سکتی ہے۔ وہ تمہیں تھوڑی دیر بھوکا رکھتا ہے تاکہ تم صبر کا ذائقہ چکھو۔ رزق کبھی صرف کھانے یا پیسے کا نام نہیں، رزق وہ بھی ہے جو تمہارے دل کو سکون دے۔ رزق وہ بھی ہے جو تمہیں بگاڑنے کے بجائے سنوار دے۔ رزق وہ بھی ہے جو تمہیں قریب خدا کر دے۔ کبھی کبھی اللہ رزق روک کر دل کھول دیتا ہے، اور جب دل کھل جائے نا تو بندہ ہر حال میں شکر گزار بن جاتا ہے۔ پھر وہ جان لیتا ہے کہ میرا رب مجھے بھوکا نہیں رکھ رہا بلکہ بھروسہ سکھا رہا ہے۔ جب بندہ سمجھ جاتا ہے کہ رزق ہاتھوں سے نہیں آتا بلکہ رب کے حکم سے آتا ہے تو اس کے اندر سے خوف نکل جاتا ہے۔ پھر وہ نہ زمانے سے ڈرتا ہے نہ لوگوں سے، کیونکہ اس نے راز جان لیا ہوتا ہے۔ رزق رب کے قبضے میں ہے، نہ کہ دنیا کے۔ کبھی وہ تمہیں آزمائش دیتا ہے تاکہ تم صبر کی دولت کماؤ، کبھی وہ تمہیں کمی دیتا ہے تاکہ تم قناعت سیکھو، کبھی وہ تمہیں چھین کر دیتا ہے تاکہ تمہارے دل میں وہ بیٹھ جائے جو دینے والا ہے۔ کیا تم نے غور کیا ہے کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں مگر بے سکون، اور کچھ لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں مگر دل امیر رکھتے ہیں۔ یہی اصل رزق ہے، سکون دل۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ پر یقین رکھ لے اسے دنیا کے دروازوں کی فکر نہیں رہتی۔ وہ جان لیتا ہے دروازے بند نہیں، بس امتحان شروع ہوا ہے۔ یاد رکھو
जब तुम दुआएं मांग कर थक जाओ तो खामोश मत होना, क्योंकि वो खामोशी भी दुआ बन जाती है। अल्लाह सुनता है दिल की ज़बान से। कभी कभी अल्लाह तुम्हें देर से देता है ताकि तुम जान लो कि जो जल्दी मिल जाता है वो हमेशा के लिए नहीं होता, और जो सब्र के बाद मिलता है वो तुम्हारा नसीब बन जाता है। अल्लाह की ताखीर दरअसल उसकी रहमत होती है। वो तुम्हें उस वक्त देता है जब तुम शुक्र के काबिल हो जाओ, और जब वो देता है तो इतना देता है कि तुम हैरान रह जाओ। लिहाजा जब जिंदगी में रास्ते बंद होने लगें तो ये मत समझना कि अल्लाह तुमसे नाराज है, बल्कि समझना कि अल्लाह तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जा रहा है, जहां तुम्हारा रिस्क, तुम्हारा सुकून और तुम्हारा मकाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हर बंद दरवाज़ा दरअसल रहमत का नया दरवाज़ा होता है, बस तुम्हें यकीन के साथ चलना है। आखिर में बस इतना कहूँगा, रिस्क बंद नहीं होता, रास्ते बंद हो जाते हैं, और जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसके लिए हर बंद रास्ता रहमत का जीना बन जाता है। तुम बस रुकना नहीं, घबराना नहीं, मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। और जब तुम शुक्र करते रहो, सब्र करते रहो, तो एक वक्त आता है जब अल्लाह तुम्हें दिखाता है कि उसका वादा सच्चा है। एक वाक़या याद आता है। एक बुजुर्ग शख्स जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, कभी खेत में मजदूरी, कभी छोटा कारोबार, लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। कारोबार डूब गया, घर बेचना पड़ा, और लोग कहने लगे अब तेरा वक्त खत्म हो गया। लेकिन उस बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे रब ने मेरा रिस्क नहीं रोका, बस मेरा इम्तिहान शुरू किया है। एक दिन वो खाली जेब मगर पुर यकीन दिल के साथ अल्लाह के हुजूर खड़ा हो गया। आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने तेरी राह में सब कुछ खो दिया, मगर तू मेरा रब है। मैं अभी भी तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ। अगर रिस्क तू देता है तो दरवाज़ा भी तू ही खोलेगा। और सुनो, अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। कुछ ही दिनों बाद एक पुराना दोस्त जो बरसों से गायब था अचानक वापस आया। कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हें एक वादा किया था, आज वो पूरा करने आया हूँ। उसके हाथ में एक कागज़ था, ज़मीन का कागज़, और उसने कहा, ये तुम्हारे नाम है। तुमने कभी मुझसे कर्ज नहीं मांगा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखाया कि तुम्हारा हक मेरे हाथ से देना है। सुभान अल्लाह। वो लम्हा आंसुओं में डूब गया। जिसके पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने उसे इज्जत, ज़मीन और दिल का सुकून सब दे दिया। ये है तवक्कुल का राज। जब बंदा सब छोड़कर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसे वहीं से रिस्क देता है जहां से उसने सोचा भी नहीं होता। कुरान कहता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। याद रखो मेरे दोस्त, तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि हाथ बांध कर बैठ जाओ, बल्कि ये कि दिल को अल्लाह के हवाले कर दो और मेहनत करते हुए मुतमईन रहो। तुम दरवाजे पर दस्तक दो, लेकिन ये यकीन रखो कि दरवाज़ा खोलने वाला इंसान नहीं, अल्लाह है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तब ही तुम अल्लाह के करीब होते हो, और जब तुम अल्लाह के करीब होते हो तो तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहते, चाहे वो हाथ रिस्क से भर जाएं या दिल सुकून से। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हें अल्लाह पर भरोसा करना ही पड़ता है,
जब हर रिश्ता, हर उम्मीद, हर सहारा टूट जाए, तब एक ही आवाज़ बाकी रहती है, अल्लाह मेरे साथ है। और जब तुम इस यकीन तक पहुंच जाओ तो दुनिया तुम्हें कुछ भी नहीं छीन सकती। फिर तुम्हारी नींद में सुकून होता है, तुम्हारे आंसुओं में दुआ होती है और तुम्हारे दिल में रोशनी। इसी को तवक्कुल कहते हैं। आंखों से नहीं, दिल से देखना कि मेरा रब जिंदा है, मेरा रब देख रहा है और मेरा रब कभी गलत फैसला नहीं करता। लिहाजा मेरे दोस्त, अगर आज तुम मुश्किल में हो, अगर रिस्क के दरवाजे बंद लग रहे हैं, तो मायूस ना होना। अल्लाह तुम्हें रोककर तुम्हें गिरा नहीं रहा, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए नया रास्ता बना रहा है। रिस्क बंद नहीं होता, बस कभी कभी छुप जाता है ताकि तुम अपने रब को ढूंढ सको। बस उस पर यकीन रखो, मेहनत करो, दुआ करो और उसकी रजा में राजी रहो। आखिर में बस यही कहूंगा कि जब तुम अल्लाह के हो जाते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें सब कुछ देकर आजमाता है और कभी सब कुछ लेकर, मगर हर हालत में वो तुम्हारे साथ होता है। बस तुम रुकना नहीं, मायूस नहीं होना। तुम्हारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो भी अल्लाह की याद में गिने जाते हैं और तुम्हारी खामोश दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस वक्त का इंतज़ार करती हैं। अल्लाह वो रब है जो दरवाज़ा बंद नहीं करता, बल्कि दरवाजे के पीछे तुम्हारे लिए रोशनी तैयार करता है। तुम सिर्फ थोड़ा सा और सब्र कर लो, तुम्हारे हिस्से की खैर अभी लिखी जा रही है। याद रखो, अल्लाह के फैसले कभी गलत नहीं होते। वो तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है, चाहे तुम उस वक्त समझ ना सको। जिंदगी के सफर में जब सब साथ छोड़ जाएं, तो ये मत समझना कि तुम अकेले हो, बल्कि समझना कि अब खुद अल्लाह तुम्हारे साथ चलने वाला है। जो बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करता है, उसके रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बल्कि हर बंद दरवाजे के बाद एक नया आसमान खुल जाता है। यकीन रखो, तुम्हारा रिस्क तुम्हें तलाश करेगा जैसे हवा खुशबू को तलाश करती है। तुम बस अपने यकीन को जिंदा रखो। और जब भी दिल कहे कि मेरी दुआएं सुनी नहीं जा रहीं, तो मुस्कुरा कर कहना, मेरा रब खामोश है मगर मौजूद है। कभी कभी उसकी खामोशी ही सबसे बड़ी रहमत होती है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसकी तरफ पलटो, दोबारा यकीन सीखो और फिर वो तुम्हें वो दे जो तुम्हारे दिल से ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे दोस्त, रिज़्क बंद नहीं होता, रास्ते बंद हो जाते हैं। और जब बंदा अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो जाता है, तो हर तंगी, हर महरूमी नेमत में बदल जाती है। आखिर में बस इतना कहूँगा, अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो तो जिंदगी तुम्हें कभी नहीं तोड़ेगी। तुम गिरते हो मगर बिखरते नहीं, क्योंकि तुम्हें संभालने वाला खुद अल्लाह है। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को यकीन दे दे, हमारी दुआओं को सब्र दे दे और हमारे रिज़्क को बरकत दे दे। हम तुझ पर भरोसा करते हैं, तू हमारा रब है और तू ही काफ़ी है। राज़े ज़िक्र जहां लफ्ज़ नहीं दिल बोलता है। राज़े ज़िक्र हमारी कोशिश है कि हर दिल को अल्लाह के करीब लाया जाए। राज़े ज़िक्र हम अल्फाज नहीं एहसास सुनाते हैं। राज़े ज़िक्र जहां हर खामोशी भी इबादत बन जाती है। राज़े ज़िक्र दिल से निकली बात दिल में उतरने के लिए। राज़े ज़िक्र एक छोटी सी कोशिश आपके दिल में रोशनी जगाने की। राज़े ज़िक्र जहां हर लफ्ज़ दुआ है और हर दुआ यकीन।
اللہ کے قریب ہونے کا سفر الفاظ کے ذریعے۔ راز ذکر ہماری کوشش ہے کہ ہر لفظ آپ کے دل میں ایمان کی روشنی جگا دے۔ یہ الفاظ نہیں، ایک سفر ہے اللہ کی محبت تک۔